بول نیوز کے 9 بجے کے بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ صاحب سے. میں ہوں آپ کے ساتھ رمشاد ساجد. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے پانی کے مسئلے پر. اتحادی آمنے سامنے آ گئے ہیں. ایوان بالا میں پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان پھٹ پڑی. کہا کہ پانی سندھ کا حق ہے. چولستان کے ریگستان کو ہریالی میں تبدیل کرنے کے لیے پانی کا بہاؤ تبدیل کیا جا رہا ہے. کہا 7 ملین ایکڑ کس طرح زرخیز بنائیں گے جبکہ پانی نہیں ہے. سینیٹر عرفان صدیقی نے جواب دیا. بولے کہ سندھ کو پنجاب کی نہروں پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پنجاب نے اپنے حصے کے پانی سے نہریں نکالی ہیں. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جس کو روکا جائے. نہ صوبوں سے جو لوئر ریپیرین ہیں جو ایک معاہدے میں ہیں, پانی کی تقسیم کے اور منصفانہ تقسیم کے معاہدے میں ہیں, ان سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. فیصلے کو روکیں یا وفاق جو ہے اس پہ کوئی بڑی ضرب لگنے والی ہے, ایسا کون سا فیصلہ ہوا ہے جس کو روکنا ہے؟ 25 سال سے ارسا رپورٹ کر رہی ہے کہ پانی کی کمی ہے سسٹم میں. 7 ملین ایکڑ کس طرح زرخیز بنانا جائیں گے جب آلریڈی پانی ہے نہیں آپ کے سسٹم میں. اگر پنجاب نے سندھ کے پانی میں تجاوز کیے بغیر ہم کچھ مزید علاقے کو سیراب کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم میری ناقص رائے میں تو یہ کچھ جرم مجھے نہیں لگتا ہے. جب سی انٹروژن ہوتا ہے تو پوری سوئل جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے, وہ نمکین ہو جاتی ہے, سیلائن ہو جاتی ہے اور کسی کام کی نہیں رہتی, بنجر ہو جاتی ہے. سندھ کو یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے, اخلاقاً بھی قانوناً بھی. ارسا کے جو بھی قواعد و ضوابط ہیں, ایکارڈ ہے, اس کے مطابق وہ اس پانی کو کس طرح استعمال کرتا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں ہم ملاقاتیں کریں گے. بلاول بھٹو کی وزیر اعظم اور وفاقی وزراء سے ملاقات کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے زرداری ہاؤس سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. پی پی کے تحفظات پر حکومت سے بات چیت کیے جانے کا امکان ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد پہ ہم ملاقاتیں کریں گے. بلاول بھٹو کی وزیر اعظم اور وفاقی وزراء سے ملاقات کا بھی امکان ہے. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے زرداری ہاؤس سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. پی پی کے تحفظات پر حکومت سے بات چیت کیے جانے کا امکان ہے. پولیٹیکل ملاقاتوں کا تو احوال آپ نے جانیا. یہ بتائیں گے قومی اسمبلی میں آج کیا ہوا. وزیر اعظم کی قومی اسمبلی آمد پر اپوزیشن کی ہلڑ بازی. ایوان مچھلی بازار بن گیا. اپوزیشن ارکان نے نعرے بازی کی. جواب میں حکومتی ارکان نے بھی شیر آیا کے نعرے لگائے. قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی پر اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ڈپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلام آباد علی شیر. ان سے جان لیتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا. پیپلز پارٹی کے مطالبے پر وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے ایوان میں آئے تو حکومتی ارکان نے ڈیسک بجا کر استقبال کیا. وزیر اعظم کے پہنچتے ہی پی ٹی آئی اراکین نے احتجاج شروع کر دیا. خوب ہلڑ بازی کی, ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی. ایوان مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا. January till conclusion of the for 14th and 15th January is leave granted. اس آن میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے آنریبل گیسٹ یہاں تشریف رکھتے ہیں. کالنگ اٹینشن. کسی نامناسب واقعے سے بچنے کے لیے لیگی اراکین نے وزیر اعظم کے گرد گھیرا بنا لیا. شور شرابے میں اسپیکر نے ہیڈ فون لگا کر کارروائی جاری رکھی. اس ہنگامہ آرائی کے دوران پیپلز پارٹی نے آغا رفیع اللہ کی پیش کی گئی نجی تعلیمی اداروں میں مستحق اور اہل طلبہ کے لیے 10% کوٹا رکھنے کی ترمیم منظور کرا لی. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. اجلاس بدھ کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ علی شیر, بول نیوز اسلام آباد. پاکستان کے خلاف وہاں ذرائع ملک دشمنی ہے. ورلڈ بینک کے طویل المدتی فریم ورک سے معیشت مستحکم ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب. اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں پاکستان میں کام کرنے والے غیر ملکی 86 پائلٹس کے لائسنس کی توثیق میں 2 سال کی توسیع منظور کر لی گئی ہے. پیکا ایکٹ اور یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے متعلق بھی اہم فیصلے کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے.
पाकिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्की 86 पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक में 2 साल की तौसीह मंजूर कर ली गई। 2025 में नए पायलट्स की शमूलियत की फॉरेन वैलिडेशन में 3 साल तौसीह की मंजूरी। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि वर्ल्ड बैंक के तवीलुल मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। IT सेक्टर पर तवज्जो देने से एक्सपोर्ट्स मजीद बढ़ेंगी। बोले, कुछ लोग मुल्क दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। फितनल खवारिज के खात्मे के लिए काविशें जारी हैं। अमन के लिए शहदा का कर्ज ता क़यामत नहीं उतार सकेंगे। वर्ल्ड बैंक ने तवील मुद्दती एक शराकतदारी का फ्रेमवर्क का फैसला किया है। इसी तरीके से हमारी जो IT की एक्सपोर्ट्स वो बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है। फितना खवारिज के हवाले से जो काविशें जारी हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हम हुकूमत 24 करोड़ अवाम चाहें भी तो उन शहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई। पीका एक्ट वजारत IT से वजारत दाखिला को मुंतकिल करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम मंजूर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की तंजीम 9 के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने आलमी शराकतदारों को माशी शोबों में सरमायाकारी की दावत दे दी है और वज़ीर ख़जाना ने माशी इस्लाहात और मुस्तकबिल के चैलेंजेस का तफसीली अहाता भी किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्की मईशत में आगे बढ़ने की सलाहियत नुमाया है। हमारी काविशों के मस्बत असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना की डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत। दुनिया को तरजीही सनती शोबों में सरमायाकारी की दावत दी गई। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहात और पॉलिसियों को उजागर किया। उन्होंने कहा, मुआशी इस्लाहात नाफिज करके पायदार और मजबूत बुनियाद रखी। हमारी काविशों के मस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए। हुकूमत को इब्तिदा में फिजिकल और मॉनिटरी दबाव का सामना था। उन्होंने वाज़ेह किया कि अफरात ज़र मुबादला के कम ज़खायर, कुदरती आफात जैसे मसाइल दरपेश थे। हुकूमत ने इन मुश्किलात पर काबू पाने की जरूरी इस्लाहात की। मजबूत मालियाती पॉलिसियों के जरिए अफरात ज़र पर काबू पाया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, तवानाई और महसूलात के ढांचे में जामा इस्लाहात शुरू की। मईशत के तरजीही शोबों में ज़राअत, टेक्सटाइल और IT शामिल हैं। पाकिस्तानी सोने और तांबे ज़खायर में सऊदी अरब ने गहरी दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। ब्रादर मुल्क $9 अरब के मंसूबे के 20% शेयर्स खरीदने की मनसूबाबंदी कराए, जिसकी एक वजह तेल की आमदनी पर इन्हिसार ख़त्म करना है। मादनी वसाइल से मालामाल बलोचिस्तान पाकिस्तान में बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी का सबब बनने लगा। सऊदी अरब की मनारा मिनरल्स रेकोडेक के 10 से 20% शेयर्स खरीदने में दिलचस्पी रखता है। ये शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत करार दिए जा रहे हैं, जिनकी मालियत तकरीबन $500 मिलियन से $1 बिलियन तक बनती है। बैरिक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क बैरिस्टो ने इसे हौसला अफजा पेशरफ्त करार दिया। उनका कहना था कि सऊदी सरमायाकारी पूरे मंसूबे के लिए सूदबंद साबित होगी। सोने और तांबे के ज़खायर के मामले में रेकोडेक का शुमार दुनिया के बड़े ज़खायर में होता है। को बुलाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ज़राए इस हवाले से ये भी बता रहे हैं कि दोनों कमेटियों को वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफ भी किया है। राना सनाउल्लाह इस हवाले से कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी हमने बना दी है और जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में एक बार फिर पेशरफ्त। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 28 या 29 जनवरी को बुलाया जाना मतवक्के है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफिंग दी। इजलास में तहरीक इंसाफ के जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे की मुखालफत की गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दी है। ज़ैली कमेटी मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार करेगी। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। सब कमेटी बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका PTI का, तो उसका जवाब तैयार करेंगे। लेकिन हम जो जवाब तैयार करेंगे वो तहरीरी तौर पर उनकी खिदमत में पेश करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ने कहा, अपोजिशन से कोई डील नहीं हो रही। हमारा हुकूमती इत्तेहाद है, फैसला किया गया है कि हुकूमत डिस्टर्ब नहीं होगी। मैं इस डील के और इस तरह की बातचीत के तासुर को बिल्कुल रद्द करता हूँ। ये कभी भी ऐसा नहीं था और ना होना चाहिए। पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी तौर पे भी बेहतर सूरत हाल हो रही है, सियासी इस्तेहकाम भी हासिल हो रहे हैं। ज़राए ने बताया है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा।
कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़ी हो। आईने पाकिस्तान पर डाका डाला गया। 26वीं आईनी तरमीम ने रही सही कसर पूरी कर दी। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुस्तफा नवाज खोकर बोले कि मुल्क में बहरान की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। दहशत गर्दी हो, मईशत हो या मुल्क की सालमियत, साथ मिलकर चलना होगा। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए उठ रहे हो। 73 आइन के ऊपर डाका डाला गया है। जो शहरी हुकूक है उस पर वो असब की गई, और खासकर जो 26वीं आईनी तरमीम हुआ है उसने रहा सा भी खत्म कर दिया है। जिस किस्म की हुकूमत होगी या जिस किस्म का एग्जेक्टिव होगी, वो जो चाहेंगे वो शहरी हुकूक, ये हर शहरी की जो बुनियादी हुकूक को सलब करने में उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत ही इस चीज़ की है जिस हद तक शदीद बहरान हो चुका है, जिसकी सारी की सारी कीमत इस मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं। जो बहरान जिनका सामना है, चाहे वो दहशत गर्दी के हो, मुल्क की सालमियत के मुतल्लिक उनका ताल्लुक हो, तो उस पर मिलकर इकट्ठा चलना चाहिए। कराची के इलाके गुलशन मेहमान के करीब कारखाने में केमिकल के टैंक में गिरने से 3 अफराद की हालत खैर हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक तीनों मजदूर काम के दौरान टैंक में गिरे। तीनों अफराद को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से अगवा होने वाले अली रजा और आलियान 8 रोज़ बाद भी बाजियाब नहीं हो सके हैं। इस वक्त नुमाइंदा पोल न्यूज़ मोहम्मद काशान गार्डन हसन लश्करी में मगवी अली रजा के वालिद के हमरा मौजूद हैं। उनसे अपडेट्स जानते। जी काशान, बताइएगा क्या बात हुई है लवाहिकीन से और अहले खाना से? आज जी बिल्कुल देखें, कराची में पे दर पे गुमशुदगी के वाक़यात जो है उनमें इजाफा हो रहा है। आज भी औरंगी टाउन के इलाके से 10 साल आयान जो है वो मुबैना तौर पे अगवा कर लिया गया है। ऐसे ही गुलशन इकबाल के इलाके में आज एक लड़की जो है वो भी अगवा कर ली गई है। इदारे क्या कर रहे हैं इस कैंप पे? हम जो है मगवी अली रज़ा के घर पर मौजूद हैं। गार्डन वेस्ट के इलाके से अली रज़ा और अलियान जो है वो अगवा हुए थे। ताहाल 8 दिन गुजर गए, लेकिन इदारों की जानिब से अब तक क्या पेश रफ्त है, क्या कार्रवाई की गई है? ताहाल अभी तक बच्चे बाजियाब नहीं हुए। अली रज़ा के वालिद मेरे हमरा मौजूद है। सर, बहुत टाइम देने के लिए क्या कहेंगे, कह के तो थक गए। हमारे बच्चों के लिए बस बोल रहे, और पुलिस तो हमारे साथ तावन कर रही है लेकिन कुछ जाहिर नहीं हो रहा है। उनको भी आफरीन है हमारे साथ है। आज 8 दिन पूरे हो गए लेकिन बच्चों का कोई इल्म नहीं हुआ। मालूमात करने के लिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो अगर गौर करे तो मिनट करेगा, लेकिन अभी कुछ गौर हुआ नहीं है। हुकूमत की जानिब से कोई अभी तक आया नहीं आपके घर पर दाद रसी करने के? नहीं, कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। बस बहुत ही परेशान हो गए। सिर्फ हमारे बच्चे मिला के दे दे, हमें ला के दे दे, उनका एहसान होगा, उनका मेहरबानी होगा, हमारे बच्चों को हमसे मिला दे। अली रज़ा के वालिद ने बॉल न्यूज़ से गुफ्तगू करी और उनकी जानिब से बताया गया कि हुकूमत की जानिब से कोई अहम शख्सियात ने इनका घर का अब तक दौरा भी नहीं करा कोई। लेकिन माशरे में अदम बर्दाश्त तमाम हुदूद पार कर गई है। अटक में सिर्फ 300 रुपए की खातिर रिक्शा ड्राइवर ने 9 बेहाता दुल्हे की जान ले ली। रिक्शा ड्राइवर ने सिर्फ 300 रुपए के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर बाप बेटे पर छुरी के वार कर दिए। बेटा जाँ भाग, बाप शदीद जख्मी हो गया। जाँ भाग बदकिस्मत नौजवान काशिफ प्राइवेट अस्पताल में डिस्पेंसर की जॉब करता था। 9 दिन कबल ही शादी हुई थी। पुलिस ने नाकाबंदी करके मुसलमान की तलाश शुरू कर दी है। बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। जिक्र होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसके लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने की तैयारी आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। अगले हफ्ते तक नाम फाइनल करके लिस्ट चेयरमैन पीसीबी तक पहुंचा दिए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।